Everybody, please put your videos off. It's a request to everybody to put your videos off. And is the sound okay? Sounds good now. Yeah. Tell Alka ji. Alka ji, she wanted to say something. She wanted to say something before now. Alka ji, you wanted to say something, so they can start now, please. Sorry about this. No, it happens, I think. Yeah, Alka ji. Yeah, tell Alka ji to say. Unmute kar diya. Unmute karo Alka ji ko. She can unmute herself. She can unmute herself, but she's done it now. Now tell her to say. Yes, please start. Did you hear my welcome? Did you hear my welcome? हाँ, मतलब आधा वेलकम सुना. ओ अच्छा, एक और लाइन बता देते हैं. हाँ, इस मौके पर चंद शब्द दो कलाकारों के लिए. आसमां को रश्क था जिन जिन सितारों पर, बड़े हौले से बुझे हैं वो चिरागी महफिल से. नमन है उन सितारों को. Good evening to all who have joined. Thank you again. Thank you. Please start. Thank you. Over to Meera ji. Would you like to play that? Absolutely. The film, yes. Like anyone who is searching for self-expression, Muzaffar Ali's lifestyle is full of contrasts. The son of the Raja of Kotwara from Awadh, he grew up in the cultural milieu, unrivaled for its finesse in the art forms, etiquette and language. Sound. Yet, he is the first today to argue for the dignity of labor, for the total freedom of the individual. Poetry, he learned from his revolutionary friends at the university in Delhi. Yet this was again submerged in the Angles itself. There's some extra sound. Street. Then in the immediate encounter of the marketing world.
Calcutta, a wonderland of art and advertising. Anthony Mayer, creative director of Carrier Maryland, wrote for Muzaffar Ali's third one-man painting show in Calcutta, 1968. Here is a painter who comes to grips with material and texture of life around him and suffuses them with poetry. A painter who discards traditional images and examines the organic material of Indian life. Surely a truly modern, truly Indian painter. Sound is not. The move to Bombay was experiencing another metropolis like Calcutta, facing the same saga. Correct. Someone Sound on. became a reality, followed soon by another exhibition of collages. Gaman brought alive the harsh and tragic predicament of migration, felt through the people of Muzaffar Ali's own village and their plight in Bombay. As Faiz Ahmed Faiz wrote after seeing Muzaffar Ali's film in 1978, Muzaffar Ali's Gaman is a poem in visuals. Tragic lyricism, its muted eloquence, deeply perceptive, sensitively conceived, truthfully captured slice of reality around the beauty and heartbreak of the human situation down in makes it a sheer delight, a veritable tour de force. The next step was Umrao Jan. A nostalgic journey into the culture of Awadh, a bridge between dream and reality. With poetry and music, water, parched soul. You want to say not clear, not clear. इन आँखों की मस्ती इन आँखों की मस्ती मस्ताने मस्ताने इन आँखों से वाबस्ता इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों Sorry, I think there was some disturbance in the video and the clarity because I think yesterday when Sound we is tested, also. it was much, much better. Yeah. Sorry Well, for maybe if anyone is interested, you can WhatsApp them the video at a later Yes. point. Yes, Yes, we'll do that for we will sure. do that. We will do that. Thank you very much for having us today on this platform. And it's really wonderful that so many of you have got together. And in these times, we are trying to share moments of inspiration and joy. I think the world has gone through a very tragic time in these last few weeks. And especially in India for the last 2 days with two of the very special people from Bollywood, Irfan Khan and Rishi Kapoor, passing on. But here we are, and thank you again for joining. This little film that today's meeting is titled Umrao Jan. Everybody thinks that
you know, Muzaffar Ali is Umrao Jan and Umrao Jan is Muzaffar Ali. But there was a lot that led to Umrao Jan, and there was a lot that happened after Umrao Jan. So I will begin by asking Muzaffar that he moved to Calcutta in 1966, and his whole world changed when he went there. So what was it about Calcutta that inspired you most? What were the kind of people who met there who really gave you the direction for your life to come? I think Calcutta, coming from Lucknow and Aligarh, was, opening of a wonderland of art and commerce. Calcutta was a very stimulating place. There were a lot of sensitive artists, there were sensitive designers, sensitive painters, and to see them at close quarters, working with them. I was in an advertising agency called Clarions, where Satyajit Ray was the art director. So, just a very kind of even a superficial encounter meant a lot to me. So Calcutta was like opening a new world of art, a new world of, I would say, commerce, and a new world of communication. So Calcutta was, at that time, Calcutta was Calcutta. There was nothing else other than Calcutta in India. Who were the most inspirational people you met there apart from Satyajit Ray? Muzaffar ji, please keep the mic a little close to you. Meera ji is being heard very clearly. You need to be. The people that I met there were, to a great extent, people from the Calcutta film world, which was like the new art, the Nouvelle Vague. So there was a lot of people like Mrinal Sen, Ritwik Ghatak, Satyajit Ray. All these people were there, and they were looking at new ways of exploring the idiom of cinema. They were moving from novels, short stories into cinematic formats. So I think Calcutta was it was very amazing. It was, in fact, Calcutta has always been, even in terms of sound, the gramophone company came up there, the HMV, and the whole world of sound blossomed there. And before that, even people like Wajid Ali Shah, having stepped into Calcutta, though in exile, he brought with him a lot of poetry and music and Thumri and Kathak. So Calcutta was a very, it blossomed into something which, for me, it was amazing, Calcutta. From Calcutta, you moved to Delhi. From Delhi, you moved on to Bombay and started working with Air India. And you made your first film, Gaman, while you were working with Air India. And what was it that inspired you to make Gaman? See, Gaman was, for me, it was like, it was really the heartbreak of the human situation. People, Bombay was not exactly what what normally people would take at face value. It was a lot of people who were dispossessed. They were working there. They were working as taxi drivers, and they were working as migrant labor. So to see them uprooted from their homes, from their soil, was a very sad experience for me. I felt, besides Air India, which was something very different and very big, this life which I saw engulfing me was very, very moving, very heart-wrenching. And that is what really, and I got inspiration from poetry to be able to understand the empathy, to feel the empathy with the people, So even in Gaman, the whole film is based on poetry. सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है,
तो ये तमाम सब चीज़ें जो आदमी देखता है, महसूस करता है और उनको एक फन की शक्ल देता है, एक मूविंग इमेजेस मिला के ढालता है. So that was something which is going on side by side to my working in Air India. And Air India was also in a way opening new doors. It was opening a new sense of understanding India, because through Air India we were promoting in India, we were promoting the art of India, we were promoting the dance of India. So Air India at that point was the only vibrant body which was looking at positioning India globally, you know. And I was very fortunate to be in that time, in that position, working with a person like Bobby Cooper, who had designed the Maharaja, you know. So I think at that time, Air India was one of the finest products that was emerging out of India. And I was very excited to be part of that product. But साथ साथ उसके जो एक अंदर से दर्द उठता था दुनिया का, मतलब जो अपने शहर के चारों तरफ लोगों को तकलीफ हो रही थी, अपने गांव को लोग छोड़ के आ रहे थे, वो अपनी जगह पे था. तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी. एक तो हिंदुस्तान की एक शक्ल कैसे हम दुनिया के सामने रखें, जिससे कि लोग हिंदुस्तान आए, घूमने आए, देखने आए, एयरलाइन का मतलब प्रमोशन हो. बिकॉज वी had to think of something very different, because we didn't have big budgets like Pan Am and VOAC and TWA had. We had small monies. सॉरी, आप माइक को हाथ में ले लीजिए ना प्लीज. हाँ जी, थोड़ा पास में. हाँ जी, थैंक यू सो मच. तो मैं ये कह रहा था कि where did I leave it? So that you made Gaman 45 years back on the problem of migration from rural centers to urban centers and the problems people faced, the migrant labor as well as the city dwellers. And don't you find it strange that 45 years later, that problem still exists, and today it is stared in the face in a much bigger and a much more problematic manner? I would say, in a sense, it was a prophetic film that you made then, and it is equally relevant today. नहीं, आदमी जब कहीं ना कहीं सच्चाई की रग पकड़ता है तो वो एक चीज़ हमेशा के लिए जिंदा रहती है. और गमन, हालांकि मैं फिल्म बना रहा था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है इससे. कोई भी गांव इतना मजबूत नहीं हो सकता है कि वो सारे अपने निवासियों को पकड़ के रखे, उनको रोजगार दे. तो ये तो होना ही था, और धीरे धीरे करके ये होता ही रहा, और ये मामला बढ़ता रहा कि अब हालांकि कई मतलब लोग मतलब बहुत संपन्न भी हो गए. बहुत से लोग यूपी के हैं जो वहीं पैदा हुए हैं, उनको ये अंदाज़ा भी नहीं कि यूपी क्या है. अब इनको जो वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है, उसका एक अलग उसकी एक अलग सच्चाई है, उसका एक अलग दर्द है. तो वो ये दर्द एक हालात का है जो मुझे लगता है हालात हमेशा प्रोफेटिक होते हैं, और शायर जो है वो जब लिखता है तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे की सोच के लिखता है. तो फॉर मी गमन वाज रियली poetic kind of a epiphany. And after Gaman, you moved to a very different topic, Umrao Jahan, based on Mirza Hadi Ruswa's novel. Was she a real character or a fictional character? Did he make her up? Did she exist? मुझे लगता है कुछ तो वो कुछ ख्वाब है, कुछ असल है, कुछ तर्ज अदा है उनकी, रुस्वा साहब की. लेकिन इतने लोगों से वो मिले होंगे अपनी ज़िंदगी में कि उन्होंने कई लोगों को मुझे लगता है मिला के ये किरदार पैदा किया उमराव जान का. तो कहना मुश्किल है कि कोई शख्स, ये इस नाम का कोई शख्स था, लेकिन कहते हैं कि उनकी कब्र है वहाँ लखनऊ में. किसकी? उमराव जान की.
तो वो तो उमराव जान की कई खबरें हो सकती हैं और कई उमराव जान भी हो सकती हैं, क्योंकि उमराव जान एक बहुत मज़े का नाम है तवाइफ की दुनिया में। So the book, of course, the scope of the book must have been very large. Did you have to leave any bits of it out, or do you think you managed to get the entire story into your film? नहीं, मतलब किताब में इसकी ये मुझे लगता है ये इसके जो मेन ट्रेजेक्ट्री है, जो एक माइलस्टोन्स हैं उनको लेके चले थे, which must be about 30% of the book or maybe even less. अच्छा. लेकिन उसके लिए पूरी किताब का मिजाज समझना, वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाती है, कहाँ ख़त्म होती है, वो बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके फ़ोन तो था नहीं, ये कैसेट पे, और उसको मैं अपनी गाड़ी में सुनता रहता। जब रोज़ ऑफिस जाता था तो जाते आते में एक बार उमराव जान मैं पूरी सुन लेता था। तो वो मेरे दिमाग में एक उसका माहौल, उसकी सुबह शाम, उसकी वो एक मुझे लगता था एक कोई शख्स जिंदा हो रहा है मेरे सामने। So in the process, did you feel you had fallen in love with Umrao Jan, the character? अब ये तो ज़ाहिर, टू मेक अदर पीपल फॉल इन लव यू हैव टू फॉल इन लव आल्सो। वो हैं तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा महबूब नज़र तो देखो। तो ज़ाहिर है यू हैव to make other people fall in love with your muse, you have to fall in love with the muse. If she was sitting here in front of you, which of Shahryar would you have, recited to her, or something that she would have identified with most? जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। So while you were preparing for the film, did you meet anybody who was like her, courtesan like her, or was it all based on what she would have been like? See, I had to banish this whole idea that I'm making a film on a courtesan. I had out of my mind. I had to make a clean getaway from that image of the courtesan. सुनाई दे रहा है आप लोगों को? तो उस इमेज को निकालने के लिए मुझको एक I had to just look at a girl, a helpless girl in a very callous kind of world, you know, and build up this girl and build her up through events and find poetry to present the events and to present the trajectory of her development, you know. तो उस किरदार को एक इंसान की शक्ल में देखने की कोशिश की, एक मजबूर इंसान की शक्ल में देखने की कोशिश की, एक ऐसे इंसान जिसमें उत्साह है, जिसमें ख्वाब देखने की उमंग है, फिर उसके बाद वो इंसान किस तरीके से डिसल्यूजन होता है, फिर उसके ख्वाब किस तरीके से ज़िंदगी से टकराते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं, फिर कैसे वो इंसान जो है वो फाइनली ही फेसेस और शी फेसेस हरसेल्फ, यू नो। तो एक मैंने एक पूरा एक उसका पोइटिक ड्राफ्ट, और फॉर्चुनेटली आई हैड शहरियार विद मी, और तो सुबह शाम वो मतलब सब कुछ छोड़ के वहीं बॉम्बे में रहते थे और सामने खयाम साहब भी रहते, तो आई कुड वी कुड वर्क आउट दिस होल पोइटिक म्यूजिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ कैरेक्टर व्हिच वुड गो इनटू पीपल्स ब्लड स्ट्रीम, यू नो। तो उमराव जान में जैसे मतलब खयाम साहब थे, शहरयार साहब थे, दे रोट पोइट्री जिसके मुजरे बने. How did you choose a choreographer like Kumudni Lakhia as opposed to others who would have been more obvious a choice? अब देखिए एक छोटी सी बात है, जैसे जरूरी नहीं है कि आदमी लखनऊ का हो कि वो लखनऊ पे आशिक हो. तो आप देखें ना, इसमें हर शख्स जो है, जो मेन लोग हैं, इनका कोई दूर दूर लखनऊ से ताल्लुक नहीं है. चाहे वो खयाम साहब हों या रेखा हों या कोई भी हो, मतलब हमारा काम था कि हमको उनके अंदर एक लखनऊ पैदा करना है और उस लखनऊ में एक अंदाज और एक अदा पैदा करना है ताकि दुनिया उस लखनऊ से आशिक पे आशिक हो जाए. तो उसी सूरत से मुझे लगा
बड़ा भारी परंपरा है, लखनऊ घराना है उनका, वाजिद अली शाह की मतलब कोर्ट से वो सब उनकी कला निकली है। लेकिन मुझे लगा कुमुदनी भी लखनऊ से उनका ताल्लुक रहा है, और कुमुदनी में एक खास एक अदा थी, इट वॉज वेरी पोएटिक, यू नो। बिरजू महाराज में एक खास नॉलेज थी, इनमें एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही इंडियरिंग अंदाज था कुमुदनी में, जो मैं आप बयान नहीं कर सकता हूँ। वो जो पर्दे पे हुआ है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीज़ उन्होंने पैदा की, ये क्या जगह है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। तो आई थिंक ओनली कुमुदनी लाइक पर्सन कुड डू इट, यू नो। एंड अगर हम किसी मतलब हम किसी और का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन क्यों हमने कुमुदनी को लिया और उससे क्या हुआ ये जाहिर है सबके सामने। Rekha. How did you find Rekha? And she had never done anything like this before. Still, you put your whole, focus on her as the protagonist to lift this very beautiful and very sad story. सी अब क्या था रेखा में कि मैंने मतलब कास्टिंग वाज डेफिनेटली अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। इट वाज नॉट इजी टू कास्ट। हर आदमी अपनी राय देता था, हर आदमी कहता जी इनको ये नहीं आता, इनको उर्दू नहीं आती, इनको डांस नहीं आता, इनको ये नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि इसमें जो कहानी का बयान है वो आंखें कर रही हैं। किसी उसकी आंखों में ये कैफियत होना चाहिए कि वो उसमें उत्साह भी हो, उमंग भी हो, और साथ साथ गिर के संभल के जिंदगी को फेस करने की एक क्या नाम है, एक स्ट्रेंथ तो करेज नजर आए। तो मुझे जब एक रेखा की मैंने एक फोटो देखी थी कहीं, मुझे लगा कि इसकी आंखें जो हैं बिल्कुल वो दे जस्ट दे आर वल्नरेबल एट द सेम टाइम दे पियर्स थ्रू यू, यू नो। तो वो मुझे लगा कि ये दिस पर्सन कैन डू दिस रोल, यू नो। But सिर्फ आंखें मतलब she had to dance. How did So you the other imagine things were कि- there. Obviously, I mean, she could dance, she could talk, she could do everything. I mean, जाहिर है उर्दू पे उस पे मेहनत की गई उर्दू पे। How difficult was she to direct? I think she found herself कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, मैं जिंदा रहूंगी इस फिल्म के बाद। तो जब आदमी को यकीन, दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है फेथ और यकीन। अगर हमको यकीन है कि वो कर सकती है और उसको यकीन है कि हमेशा ये she tries to control me and everything, हमारा चेहरा देखे ना देखे क्या बोल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि what was I saying? हाँ, I felt she could do it, you know what I mean? तो वो उस यकीन ने ही उसको एक ड्रीम को रियलिटी बनना मतलब बना सकी। पूरी फिल्म की बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि रेखा एट द टाइम दैट शी वाज in love. Was she in love with herself? Was she in love with somebody else? Was she in love with the character? What is it that it was her predicament in life at that moment? Do you feel that also impacted her performance in the film? Definitely, I think she was in love. Maybe she was in love with the film, with the idea of the film, and I'm glad she was not in love with me. अगर वो she was in love with me, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है फिल्म का। लेकिन she was in love. She was in love with some कोई होगा कोई notional character, and she was intelligent enough to use that love to be creative, you know. तो जाहिर बगैर इश्क के तो कुछ नहीं होता है, और हमारा काम ये है कि दुनिया को उस पर आशिक करें। हम आशिक हो जाएं तो हम तो, हमारा काम तो टेम्पररी है, लेकिन दुनिया को उस पर आशिक हो जाना और कर देना वो तो एक दायमी चीज़ है, वो हमेशा के लिए लोग उसको देखते रहेंगे, उस पर आशिक होते रहेंगे। वो तो है, आज तक लोग देखते हैं और रेखा ही पे आशिक होते हैं। हाँ, तो हमारा काम इतना ही था कि रेखा पे लोग आशिक होते हैं हमेशा। Umrao Jaan was a heavily loaded film. Urdu, poetry, music,
dance, especially the music, the costumes, and a very poignant romance. Still, you manage to make all these things seamlessly flow into each other and keep the core of the story very simple so an ordinary person could identify with it. How did you manage to do this with such simplicity and yet with so much poignancy? As I said, you have to live that character. You have to be that character. You have to, each moment you have to be, you have to feel that you're going through that life. And it's a very organic process. You can't shove things onto yourself, So it had to be very organic. It had to be very, and being a painter, being able to sketch, I could sketch a lot of details, which would have otherwise not be possible to recreate on stage, on screen. And besides that, I had this drive and passion for music and poetry. And I think poetry helped me a lot to bring everything together. Plus, obviously, उसमें जो नॉस्टैल्जिया है, जो फिल्म के रात दिन हैं, जो फिल्म के सुबह शाम हैं, जो फिल्म की लाइटिंग का, it was like writing with light, so वो चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आती हैं, फिर उनको कैसे समो के सजा के उसको रखते हैं, फिर कैसे when you are on the set, how you bring everything together. I mean, you have to be very, I think, humble and organic. When you talk of the set, it must have been difficult to recreate that period of 1850s in the Lucknow of and in the Bombay of the time when you actually shot the film. That's my passion. That's my art. I want to play with time. I want to create that patina. I do that in my paintings. So for me, creating a set is like creating space in which I can explore light. I can explore the movement of characters. चाहे वो मतलब बनाया हुआ हो या असली कोई जगह हो. For me, that is really the magic of cinema. And I think that's what I learned from Calcutta, from Mr. Ray, because I think he was. क्या होता है कि बाज़ वक्त लोग आपको मिलते हैं, वो सिर्फ एक निगाह आप पर डालते हैं और आप उनके हो जाते हैं, या उस निगाह में वो सब कुछ गुण और ज्ञान दे देते हैं. तो वो मिस्टर रे के साथ यही हुआ कि उनके साथ हम कम वक्त रहे, लेकिन उस कम वक्त में उन्होंने हमें जो एक सोच और एक समझ दी, तो वो आज वो बहुत कीमती है. ये किन नजरों से तूने आज देखा कि तेरा देखना देखा ना जाए. तो ये मुझे लगता है ये फकीरी के मोमेंट्स होते हैं जिसमें आपको कुदरत से कुछ मिलता है और उसको किस तरीके से आप एहतराम से अपने दिल में रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं एक फन की शक्ल में. और उसमें फन में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ह्यूमिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं अपने घर को बुलंदी पर चढ़ के क्या देखूं, मतलब मैं अपने घर को ऊंचाई पर चढ़ के क्या देखूं. उरूज फन मतलब द हाइट ऑफ माय टैलेंट मेरी दहलीज पर उतार मुझे. सो यू हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम द थ्रेशोल्ड. अब मैं उमराव जान की जब शूटिंग कर रहा था तो महबूब स्टूडियो में मैंने सेट लगाया था. उसमें 15-20 दिन तो मुझे उस सेट को सिर्फ अपने उस पर हाथ चलाते लग गया, सिर्फ उसको मस्त करते हुए, ताकि वो लगे कि इन दीवारों को पता नहीं कितने लोगों ने छुआ है. अब ये कोई लोग कह रहे थे ये क्या कर रहे हैं आप. फिर सुबह मैं सबसे पहले पहुंचता था और मैं उस सेट को झाड़ू देता था और मैं किसी को जूता पहन के नहीं आने देता था. मैं समझता था कि ये एक सेक्रेट जगह है जहाँ पर बहुत ही नाजुक मामलात जो हैं वो बन के निकलेंगे, पेश होंगे दुनिया के आगे. तो मेरे लिए ये एक जो creating of space through which light travels and creates moving images, वो एक बहुत ही it's a divine sensation. And it's a sensation that Rekha has not been able to come out of since.
आज भी वो अपने आप को, she has modeled herself after that character. Why do you think she's been living that character for the last so many years? Because she went through divine light. Umrao Jan is divine light. It was not ordinary light. उसमें हर शख्स जो था वो कुछ और था. उस पे सब, हर शख्स पे किसी दूसरे की नजर थी, कोई बड़ी नजर थी, और वो नजर जो थी वो सिर्फ रोशनी से पैदा होती है. अंधेरा जो है वो कोई चीज नहीं. अंधेरा जो है, ये दुनिया कुछ नहीं है अंधेरे में. जब इस पे रोशनी पड़ती है तो एक चीज जो है खिलती है, खुलती है, निकलती है, निखरती है. तो ये जो रोशनी का मामला है वो मैंने जब एग्जीबिशन की थी 66 में, तो उसमें मैंने लिखा था राय साहब का, कभी रोशनी की तलाश में कई मंजिलों से गुजर गए, कभी रात ऐसी डरावनी कि हम आरजू से भी डर गए. तो ये जो डर, आरजू, रोशनी, तलाश, ये चीज़ें जो हैं, ये मुझे लगता है मेरे साथ इब्तिदा से चल रही हैं, और ये मेरे फन का एक बहुत ही बुनियादी जुज़ है. If you had to make Umrao Jan today, would you have done anything different? अभी तो हम जी लिए, उसके बाद कुछ भी हम करेंगे तो कुछ तो अलग होगा. आजकल के माहौल में अगर उमराव जान रिलीज होती, जो एक नया बिल्कुल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, अवेयरनेस. देखिए ऐसा है, आप नशे को मार्केट नहीं कर सकती. नशा जो है वो एक जादू है, वो सर पे चढ़ के बोलता है, धीरे 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 उसका कोई. अब ये आज उमराव जान भी जो चली है, तो मतलब तय दर तय, जब वो पहले वो स्क्रीन पे गई, फिर स्क्रीन से टेप पे आई, वीडियो पे आई, फिर वो पता नहीं वो नए डीवीडी पे गई, और कहाँ से कहाँ गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आज. तो वो उसको वो धीरे धीरे करके जिंदा होती रही, और आज भी एक नए जनरेशन में एक नई ताजगी के साथ जिंदा है, जो कभी एक नई फिल्म आप रिलीज करें तो वो कैफियत नहीं तारी हो सकती. उमराव जान के बाद आपने अंजुमन बनाई, एक बहुत ही अलग तरह का सब्जेक्ट. हाउ डिड दैट कम? सी, उमराव जान ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई, और गमन ने भी वही बात सिखाई, मतलब सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है. तो उसके बाद मेरा जो जहन था बम्बई से हट गया. मुझे लगा कि बम्बई में लोग जो हैं वो बहुत ही इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ज़रा सा भी उनका करियर नीचे गया तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. बॉक्स ऑफिस नहीं हुई उनकी फिल्म तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. और जो लोग बेचारे कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, उनका क्या हशर होता है, कोई उनको पूछने तक नहीं जाता है. ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है. तो मुझे बॉम्बे से एक वहशत होने लगी, क्योंकि लोगों का पूरा एक ध्यान, नज़रिया बहुत ही एक सतही लगा. नहीं, आई रिस्पेक्ट दैट सिटी एंड आई अडोर पीपल देयर, लेकिन मेरा ये एक मानना था कि इस को लेके, इस फन को लेके, वहीं से मैंने पूरा जो एक सब्जेक्ट की थिंकिंग थी, मैंने उसको 360 डिग्री कर दिया, उलट दिया. मैंने बनाई आगमन. पहले तक गमन के लोग घर छोड़ के जाते हैं, मैंने कहा वापस हम आ रहे हैं. और फिर गन्ने के किसानों के मसले को लेके बनाई. वो फिल्म जिसने भी देखी उसको बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो जाहिर है उमराव जान तो नहीं बन सकती थी. फिर अंजुमन बनाई, वो भी एक ज़मीन से जुड़ी हुई एक दस्तकार लड़की की पूरी एक पूरा एक स्ट्रगल, सफ़र वो था. लेकिन आपने देखा होगा, इससे लगा कि हम लौट रहे हैं वापस, और हम चाह रहे हैं कि लखनऊ में भी कुछ इंडस्ट्री शुरू हो. तो हम सब ये एक फिक्र एक शुरू हुई. फिर मैं कश्मीर गया जूनी बनाने. जूनी एक चीज़ अगर बन जाती तो शायद हो सकता है एक ऐतिहासिक चीज़ होती. वो इट वुड बीन द फर्स्ट फिल्म इन इंग्लिश एंड हिंदी शॉट टुगेदर ऑन 2 नेगेटिव्स. और फिर 3 साल मैं वहाँ रहा, कश्मीर की रग में उतरा, उनका मतलब माशरा समझने की कोशिश की, और ज़ाहिर है उन पे आशिक होने की कोशिश की. और उससे एक
चीज निकल के आ रही थी कि लगा कि हमको वहां से बाहर निकाला जा रहा है, जो मतलब जो वहां पर एक इंसर्जेंसी पैदा हुई। तो मकसद ये था कि जब तक, और वो फिल्म डिम्पल कपाडिया और विनोद, वो एक लाजवाब फिल्म होती। अब मैं उसकी तारीफ अभी क्या करूं, लेकिन उसके जो गाने अभी रिकॉर्ड हुए रखे हैं, आशा जी ने जो गाए हैं, खयाम साहब ने म्यूजिक दिया है, शहरियार ने लिखे हैं, वो मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं। Music has always been your strong point. In fact, फिल्मों के बाद भी, फिल्मों से हट के भी, जो आप जहान खुसरो म्यूजिक फेस्टिवल, वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल करते हैं, तो म्यूजिक की क्या बात है जिस जो it has been a driving force for you? Shall I hold this for you? नहीं Because नहीं it ठीक will है, look better. नहीं बेटर तो आदत होगी। मैं ये कह रहा था कि म्यूजिक जो है वो एक इट्स अ सेक्रेड आर्ट है, और म्यूजिक से दिल पाकीज़ा होता है, और दिल में जाके एक 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 ख्याल, एक कुछ मतलब तसव्वुरात जाके बसते हैं, और हर तसव्वुर के लिए अलग म्यूजिक है, और हर म्यूजिक के लिए एक अलग तसव्वुर है। तो ये चीज़ जो है, ये मेरे मतलब जिसे कहना चाहिए, एक मेरी एक एक साइड प्रोसेस चल रही है। तो जब ये वहाँ से मैं कश्मीर में जब था, तो मुझे एक वक्त आया कि मुझे लगा कि आई एम नॉट गेटिंग इन टू द पीपल। तो एक हमारे दोस्त थे मोहनलाल अहमा, उनका आप मुझे एक कमरा दीजिए, गाड़ी दीजिए, और एक हफ्ते के बाद मिलिए। तो एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, एंड ही हैड पुट टुगेदर एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ विलेज म्यूजिशियंस ऑफ कश्मीर। और उसको जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मेरे आँख में मतलब आंसू बहने लगे, क्योंकि मौसीकी में जो असर है, मैं मौसीकार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ कदरदान हूँ मैं, लेकिन मैं दिल से मौसीकी को सुनता हूँ। मैं शायर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे लिए शायरी की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ा मुकाम है। तो इसको मैं जितना एहतराम देता हूँ, मुझे लगता है किसी चीज़ को नहीं मैं दे पाया हूँ। तो जहान खुसरो भी जो हुआ है वो पिछले 20 साल से हो रहा है। इट्स एन एक्सपेरिमेंट in all forms of, it's like a huge design scape. Over 20 years we've learned the art of creating light sets, garments for those people who are going to be on stage, or the kind of music, the kind of poetry they're going to recite, उसका इंतखाब करना, उसको उनके साथ बैठ के तर्जें निकालना जो उसके साथ बिल्कुल उसकी रूह में उतरेंगी। तो ये भी एक पूरा एक मेरे लिए एक 20 साल का सफर रहा है। इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये क्या दुनिया है। ये मुझे लगता है आई कुडंट हैव डन दिस इन द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड। वहाँ पर ये लोग सोच ही नहीं पाते कि हम इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। जो मौसीकी है उसको किस मतलब किस रूहानियत के लेवल पे पहुंचाया जा सकता है। And it all came from the poetry of mystics. So in your journey, you've been through filmmaking, which you continue doing with different subjects, poetry, music. What about painting? What kind of place has it held? You've had an umpteen number of shows all over the country, even abroad. See, my visual sense, my painting is my skin. People cannot understand me without understanding my painting. I'm first a painter. And for me, every frame is a painting. And पेंटिंग में भी जो उसकी हम सोच डालते हैं, जो लेयरिंग डालते हैं, वो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी एक रूहानियत का जरिया है। मतलब I mean even now I'm painting all the time, I'm sketching all the time, क्योंकि पता नहीं
क्या चीज़ अल्लाह की तरफ से उस कलम की निब में आ जाए जो मैं कागज़ पे उतार सकूं, और क्या मैं देख लूं, और क्या मुझे नज़र आ जाए, और कहाँ पर कौन सी रोशनी उसको क्या बना दे। तो पेंटिंग तो मेरे लिए एक बहुत ही पर्सनल तजुर्बा है जो हर चीज़ पे लागू होता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें हम अपना पेंटिंग का जज्बा या फन ना इस्तेमाल कर सकें। मुझे लगता है कि if I was not a painter, I would be nothing. But you're also a designer. How did you think that one has to also देखिए, be सबसे proficient बड़ी चीज़ जो है वो है इंसान। जो लेबल है उसको कोटवारा, establish हाँ, करना? नहीं, मैं पहली चीज़ ये बता रहा हूँ, पहले सबसे बड़ी चीज़ है इंसान। इंसान जो बनाता है, दस्तकार, इंसान जो इस्तेमाल करता है, और ख़ास तौर से व्हेन यू टॉक ऑफ फिल्म में एक इंसान जो है वो क्या जामा पहन के आता है, क्या लिबास पहन के आता है, उसकी एक पूरी एक दुनिया होती है, उसकी पूरा एक एक नज़रिया होता है। उमराव जान कुछ ना होती अगर हम उनके बारे में ये ना सोचते कि वो कब क्या किस रंग का और किस टेक्सचर का लिबास वो पहनेंगी। ये मुझे लगता है मेरी वालदा से मुझे ये सोच, ये सेंसिटिविटी मिली है, और मुझे लगता है हर शख्स को उसकी माँ से, उसके बाप से ये सेंसिटिविटी मिलती है। लेकिन यही है कि आप उसको कितना उसको अहमियत देते हैं, कितना उसको अपनी ज़िंदगी आदमी फंस जाता है कामों में, कोई बैंकर बन गया, कोई ये बन गया, तो वो इन चीज़ों पे फिर वो गौर नहीं करता है। हमारा काम सिर्फ एक लोगों के फन का को सेलिब्रेट करना है, चाहे वो लकड़ी का काम हो, या बुनाई का काम हो, या कढ़ाई का काम हो, या सिलाई का काम हो। मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ माय पेंटिंग है। तो कोटवारा लेबल जो है, the fashion label, you think the inception was during the time of Umrao Jan? I think inception was in the time of Gaman, because when I was making Gaman, तो स्मिता used to say कि आप तुम हर वक्त इसके बारे में, कोटवारा के बारे में सोचते रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं आप यहाँ पे। तो वो बात मेरे इधर से आई, टकराई, और फिर वापस टकरा के कहीं और चली गई। तो मैंने जब इनफैक्ट व्हेन आई मेट यू एंड आई टोल्ड यू कि अब कुटवारे के लिए कुछ करना पड़ेगा, और मेरे वालिद का भी उसी साल इंतकाल हुआ था 1990 में। उन्होंने भी ये कहा था कि इस गांव में कोई नंगा भूखा ना रहे। तो हम लोग वापस गए फिर, and we started looking at human effort, the rural human effort, in a creative, in a sensitive way, And I've not looked back from then. And we have done this journey together, and you know it, that how much, the value of human effort is. इसीलिए मैंने उसका नाम कोटवारा रखा, क्योंकि ये हमारा नाम नहीं है, ये वहाँ के लोगों का पसीना है। एक गांव है जिसको कोई नहीं जानता है, हम उनके पसीने से उसको हम पहचानवा रहे हैं कोटवारा। किसी ने शायद ना सोचा हो सकता है सोचा भी हो, बहुत से गांव हैं लेकिन उसके बाद फिर और लोगों ने भी इस तरह का सोचा, जैसे मे बी शबाना ऑल्सो आफ्टर अंजुमन शी took up Mijwa as her father's village and crafts के साथ. But craft is a big passion for me, and for you also. And I keep applying my pen to paper on that. So I've exhausted my questions. Yeah. Would anybody like to ask something? Would anybody in the audience like to ask Muzaffarji and Meeraji? So they can unmute themselves and please ask. They can't unmute themselves, so they can just, like, if anyone has a question, write in the chat and I'll unmute them then. Whoever wishes to ask, please write on the chat and we'll just unmute you. Unmute these people. They written pehle.
Someone asked this question. Get back to Zoom. You're near. Yeah, there are questions there in the chat. 1 second. Can you hum any of your favorite composition? अब आप हमारा बहुत ज्यादा इम्तिहान ले रही हैं। It is from Vikas Makharia. Huh. वो आप घर आइए चाय पीजिए फिर हम कर देंगे। Let him say. We couldn't hear that. Sorry. So are we getting to hear you? Sing something? Say something? नहीं कुछ तो सुनाइए प्लीज, कुछ भी थोड़ा। क्या सुना है, मतलब बेसुरे आदमी है। Maybe Vikas can hum it for us. No, would मुझे love to hear मतलब Zafar Ji's mouth, please. नहीं वो डॉक्टर ने मना किया है मुझे कि शायरी कीजिएगा और गाइएगा मत। कुछ तो एक शायरी सुना दीजिए, इसके Okay, बिना next, बहुत next, अधूरा next. रहेगा ये। हाँ। Would you like to go back to Zuni? हाँ? Would you like to go back to Zuni? That's by Adrija Jana. हाँ, of course. I think what I was thinking was that if I can create a kind of a opera, kind of a, you can call it anything, operama or something, and it's because it's been written so beautifully. It's like a, you know, the story, the saga of that girl, Zuni, is too sensitive. It's got very simple human emotions, and I think they can come out very beautifully on stage, you know. So it can be a stage feeling, and if I can get a good actor to play that role, वो तो मतलब पर्दे फाड़ देगी, वो चीज बहुत जबरदस्त है वो. Because you know, I spent a lot of time. I took a writer from New York. I put him there. He stayed with me for 3 years, and this kind of a dialogues in English and the screenplay and that's come out is very touching, and we can create magic on stage, you know, with the lighting. And today there's a lot of technology which has come up, you know. ये तो बहुत जबरदस्त, पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या मुमकिन है, क्या नहीं मुमकिन है, क्या हो सकता है. ये सब जो इम्कान है ना, वो कुछ या इतनी ना तब्दील हुई होती ये दुनिया, या मैंने इसे ख्वाब में देखा नहीं होता. तो ये मामला है. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह. कुछ और, थोड़ा सा और. There are more questions, please. 1 minute. What's in store for the Kotwara label going forward? I think Kotwara label forward is really, I think it's a journey, it's a legacy, it's a dream. And I think, I mean, I would like to personally explore more craft, go into more what men can wear. And men, I think, need that very subtle, sensitive touch, you know, to fabric, to tailor, to cuts, to weaves. So बहुत कुछ, कोटवारा तो बहुत कुछ कर सकता है. वो तो इस सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है. How does Meera ji inspire you? मीरा जी, हाँ जी. अभी कभी तो डांटती हैं, कभी फटकारती हैं, कभी लगता है कि बगैर इनके कुछ हो नहीं सकता है. और फिर मैं भी सोचता हूँ यार, निभाना बहुत बड़ी चीज है हर चीज को. और फिर साथ साथ इंस्पायर भी करती हैं. तो आई थिंक arrived at least at a way of living together, working together, which is tough, because we somehow managed to do that. And I think our daughter is with us, and she's finding it difficult to understand how we work and what she can do for us and what we can do for her. But the only thing is that this whole journey of this Kotwara legacy, which you find in Gaman, which you find in Anjuman, which you find in Umrao Jan, even if you'll find that in Agaman, because Agaman mein I created a whole khadi texture. That khadi texture for me is something very exciting and very uplifting. You know?
तो आई थिंक खादी में बहुत कुछ हो सकता है अगर हम लोग खादी पर गौर करें तो मीरा यू कैन ऐड समथिंग हियर. No, they asked you how about inspiration. There are some more questions. Please share some verses of Umrao Jan's poetry which were not used in the film. हाँ कुछ तो है. I'll have to can I wear your chashma? She doesn't allow me to wear her chashma because she thinks वो ढीला हो जाएगा. अरे, the worst thing is to share your chashma with your husband. But चलो ठीक है. अभी recently Muzaffar put up an Instagram of very interesting poetry that he did not use in. ये शहरियार की किताब है, ओरिजिनल किताब थी जो बेचारे ने हमें दी थी 70 बहुत पुरानी. इसमें शहरियार का ही कलाम लिखा. अब ये मतलब इसमें तो सभी इस्तेमाल कर लिया था. अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया यारों, मैं अपने साये से कल रात डर गया यारों. हर एक नक्श तमन्ना का हो गया धुंधला, हर एक जख्म मेरे दिल का भर गया यारों. भटक रही थी जो कश्ती वो गर्क आब हुई, चढ़ा हुआ था जो दरिया उतर गया यारों. वो कौन था, वो कहाँ का था, क्या हुआ था उसे, सुना है आज कोई शख्स मर गया यारों. फिर है ये तो गमन का हो गया. ये उसमें नहीं था, ये शेर नहीं था. मैं जिसको लिखने के अरमान में जिया अब तक, मैं जिसको लिखने के अरमान में जिया अब तक, वरक वरक वो फसाना बिखर गया यारों. उमराव जान की है गजल इसमें. हाँ. ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है. हर एक जिस्म रूह के अजाब से निढाल है, हर एक जिस्म रूह के अजाब से निढाल है. हर एक आँख शबनमी, हर एक दिल फिगार है. हमें तो अपने दिल की धड़कनों पे भी यकीन नहीं, हमें तो अपने दिल की धड़कनों पे भी यकीन नहीं. खुशा वो लोग जिनको दूसरों पे एतबार है, न जिसका नाम है कोई, न जिसकी शक्ल है कोई, एक ऐसी शय का क्यों हमें अजल से इंतजार है. एक और गजल थी. बहुत खूब. दामे उल्फत से छूटती ही नहीं, जिंदगी तुझको भूलती ही नहीं. कितने तूफान उठाए आंखों ने, कितने तूफान उठाए आंखों ने, नाव यादों की डूबती ही नहीं. तुझसे मिलने की, तुझको पाने की कोई तदबीर सूझती ही नहीं. एक मंजिल पे रुक गई है हयात, एक मंजिल पे रुक गई है हयात, ये जमीन जैसे घूमती ही नहीं. लोग सर फोड़ कर भी देख चुके, गम की दीवार टूटती ही नहीं. Do we have time for more questions? There are quite a number of questions. I'll just give you one last question otherwise. Meera ji, what inspired you about Muzaffar ji? Well, I think it was, his whole very sensitive, very compassionate, very, in-depth approach to everything, which, made a lot of, made me see things differently. And also, I think, you discover yourself through somebody else. So it's a journey which is going on even today. It's a very dynamic journey for me. खुश होइए, खुश हो जाइए.
There are endless questions there, but I don't know whether you have the time to answer those, whether we should continue or whether we should not continue. Maybe a couple हमारे more पास is fine. Okay, so then I'll just. हम तो बैठे हैं ना लॉकडाउन में. Thank you. Rekha had once mentioned in an interview that the filming of this song, Dil Cheez Kya Hai, alone took 1 month, while she was used to wrapping up an entire movie in 3 to 4 months. What is your take on that? अब इसी ख्याल में रहिए आप. मुझे उनका ना राज बब्बर को नवाब कहा, कहने अच्छा नवाबी का ये अच्छा लगता है. तो अच्छा लगता है कि 1 महीना लगा. The next question. I'm trying to find it one second. The only compliments. Then the number of compliments there on the chat, I don't know if you can see it. Had there been men, Kumari or Bahida ji young during its making, would you have still considered Rekha? वहीदा तो खैर उनका तो जवाब ही नहीं था, लेकिन हर चीज का वक्त होता है, जगह होती है, उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में रखना भी अच्छा नहीं. आगे की बात आगे के साथ, गुजरी बात गुजरी. Which one? 1 minute. Hello, sir. How would you compare Umrao Jan with Pakiza? Did you take notes or refer from this other great film? नहीं, उमराव जान एक अलग चीज थी, पाकीज़ा एक अलग चीज थी. पाकीज़ा एक पाकीज़ा थी, मीना कुमारी का तो कोई जवाब ही नहीं था. लेकिन उमराव जान जो थी वो मुझे लगता है वो लखनऊ की दास्तान थी, लखनऊ का दर्द था, वो अलग चीज थी. और उसका पूरा पटीना अलग था, उसका माहौल अलग था. पाकीज़ा के में भी अपनी एक नगमगी थी, रक्स था, मौसीकी थी, सब कुछ था. अब ये अलग चीज थी, वो अलग चीज थी. हाँ, ढीले हो जाएंगे. सॉरी. How do we understand Ruhaniyat? Is it just out there, acquired? Sorry, one second. Is it just, I'll repeat it again. How do we understand Ruhaniyat? Is it just out there, acquired, built on with time? What is its temporality? Is that its beauty? ये रूहानियत जो है वो बुनियादी तौर पे खुदा को तो देख नहीं सकती हैं, तो उसका बंदा जो है वही उसको देखना और उसको उसमें खुदा पाना, वो सबसे बड़ी चीज़ है. और वो बगैर किसी जात पात मजहब दीन धर्म को लेके आप अल्लाह के बंदे को में अल्लाह को देख रही हैं. इससे बड़ी रूहानियत, क्योंकि वही आप देख रही हैं और वही दे रही हैं और वही आपको मिल रहा है. इसके अलावा ना कुछ आगे है ना पीछे. तो किस तरीके से एक इंसान को आप देखती हैं और उस इंसान में एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी आपको नज़र आती है, जो आप शायद अपने में ना देख सकें, लेकिन आपको लगता है कि दूसरे में एक एहसास है, दूसरे के दिल का धड़कना सुनना, यही है रूहानियत. रूहानियत जो है वो, और इसी को आप इश्क कहिएगा, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को देखती हैं तो उसमें आप वो एक इश्क की नज़र से देखती हैं, और वही इश्क की नज़र जो है वो आपको मतलब अल्लाह को पहचानवाएगी. तो वो जब तक आप उस नज़र से इंसान को नहीं देखेंगी तब तक कोई रूहानियत ही नहीं है. और एक नज़र में मतलब पूरा बारहनियारा हो जाता है. दूसरी नज़र की बात ही नहीं होती. किसी एक फकीर ने आपको देख लिया तो आप फिर उसकी हो गई, समझिए आप. इसमें कोई मतलब फिर कोई दूसरा मामला है ही नहीं. तो यही है रूहानियत. What is your upcoming project? अपकमिंग तो पेंटिंग कर रहा हूँ मैं बैठा हुआ. उसके अलावा मैं ये लुकिंग एट जूनी का प्ले के बारे में सोच रहा हूँ. फिर ऑल्सो आई वांट टू डू समथिंग विद जहान खुसरो. जहान खुसरो एक बहुत ही बड़ा मुझे लगता है सफ़र है,
पीपल है मेरे साथ, उसमें बहुत से हम सफ़र रहे हैं जो मतलब उसके अंदर बराबर के साझेदार भी हैं, मतलब कारीगर भी हैं और फनकार भी हैं, और जितने लोग जिन्होंने उसको महसूस किया, डिज़ाइन जर्नी, तो उसको मैं कैसे आगे ले जा सकता हूँ। अब पता नहीं आगे चल के क्या मुमकिन होगा, बड़ी महफिलें हो पाएंगी, बड़े जलसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, लेकिन लोगों के दिल तो प्यासे हैं, लोगों की रूह तो प्यासी है। तो उस प्यास को हम कैसे बुझा सकते हैं, ये हमारा मेन है। हमें और कुछ नहीं चाहिए कि मतलब हमें सिर्फ वो एक जो एक एक एक, एक, एक पुल बनाना है इंसान और इंसान के बीच में, वो जिंदा रहना चाहिए, चाहे और कुछ हो ना सके फिजिकली। Sir, what was your reaction after the release of Umrao Jaan? Can you have stage version of Umrao Jaan? And can we have a stage version of Umrao Jaan? अब जो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वो असल में क्या है, वो ये सारे राइट्स जो है म्यूजिक के, वो इतने झमेले में फंस जाते हैं कि वो हमारी म्यूजिक हम खुद ही नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। दैट इज वेरी सैड, क्योंकि वो म्यूजिक जो है दरअसल देखिए वो खयाम साहब की अकेले की नहीं है, शहरियार की अकेले की नहीं है, मेरी अकेले की नहीं है। वो पूरी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है एक फिल्म की, और उस पर मेरा कोई हक नहीं है। ये बड़े मतलब मामले टेढ़े हैं, इनको सुलझाना पड़ेगा। कौन सुलझाएगा, कैसे सुलझाएगा, आई डोंट नो। लेकिन हम मतलब कुछ भी हो सकता है, जो मुमकिन है वो हो सकता है। मतलब आपकी खिदमत में हूँ, इंसान की खिदमत में हूँ, इश्क की खिदमत में हूँ, हुस्न की खिदमत में हूँ, तो कुछ ना कुछ तो कुछ भी हो सकता है। Your reaction after the release of Umrao Jaan? After the release of Umrao Jaan, my father sent me a telegram after the release of Umrao Jaan. उसमें लिखा था गीता का कि effort thy duty, result is not thy concern. He sent a telegram in those days. तो मुझे लगता है कि I just left it to God कि जैसा भी, हमने तो पूरा काम कर दिया, उनकी नज़र में क्या करें, फीका है अब भी रंग, जितना लहू था सरफ़े क़बा कर चुके हैं हम। तो बहरहाल हमने सबने मिलके एक्चुअली सभी यही कहते हैं, जो फिल्म कोई भी बन के आती है सब कहते हैं कि मैंने पूरा आर्ट झोंक दिया उसमें, मैंने पूरी ताकत लगा दी, मैंने ये, हमने भी यही किया। So I'll end with three notes. There are three compliments there for you all. So I'll just read that out. Sir, one second. This is by Shikha Jain. Sir, your thoughts are so deep. Thank you so much for this memorable session. God bless you. Then this is from Jayant Krishna. I have never met a couple where two people compliment each other so well. God bless. Then this is from Ekta Jain. It was so wonderful to hear him. Thank you for making us revisit cinema, craft and soul with utmost sincerity and honesty. Great. It was wonderful to hear you. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. I think Thank you. Thank you so much. It was amazing. Thank you very much. Very grateful. Alka ji, we could ask Lalit ji to say something if he's there. Yes, if he's there. And Darshan? Darshan could not join for whatever reason. I don't know. She was on a WhatsApp call the entire time listening to you all. We made her hear it on a WhatsApp call. Yeah. Okay. 1 minute. He's not there, I think. 1 second. Let me just see if. No, he's not. He's not there. I think he's. Okay. बहुत आनंद आया सच में, बहुत डीप सोच है आपकी। भगवान आपको सदा खुश रखे दोनों को। आपके सब वाइब्रेशन यहाँ आ रहे थे ना। थैंक यू। कुछ तो राज होते हैं ना जो आदमी को समझ नहीं आते। बहुत मन से आपने हमसे बात करी, बहुत खुश हुई। थैंक यू अगेन। Thank you so much. फिर मिलेंगे, जल्दी से नहीं छोड़ेंगे। Thank you. All right. Thank you so much. Thank you. Good night. Good night. Thank you everybody for joining us. See you soon on Saturday for another good session.
which we have with Suruchi Mohta from Bombay. And for the details, you can follow us on our Facebook page, Alka Jalan Foundation, where you get details. Thank you so much.